Okay, beta, look at this question. Two particles P and Q have masses m kg and 1 minus m kg respectively. The particles are attached to the ends of a light inextensible string which passes over a smooth fixed pulley. P is held at rest with the string taut and both straight parts of the string vertical. P and Q are each at a height of h meter. ये इन दोनों की height है h meter above the horizontal ground. P is released and Q moves downwards, right? Subsequently, Q hits the ground and comes to rest. Now, this second figure shows velocity time graph for particle P. Particle P के लिए ये show कर रहा है while Q moving downwards or is at rest on the ground. Now, if we observe this velocity time graph, कि P की velocity जो है वो पहले increase हो रही है, ये accelerate हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड तक इसकी velocity increase हुई, फिर एट वंस जो है ये डिसेलरेट हुआ. अब इट मीन्स ये कब हुआ होगा, जब सडनली पॉइंट क्यू ने ग्राउंड को हिट किया होगा, तो पॉइंट पी अपवर्ड जा रहा है और फिर एकदम इस स्ट्रिंग के अंदर एक स्लैक आया होगा इस तरह से और ये पार्टिकल पी अपवर्ड गया होगा. अब जब स्लैक आता है तो पार्टिकल जो है वो स्ट्रिंग की जो टेंशन की फोर्स है उससे फ्री हो जाता है और पार्टिकल के अंदर उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है इन केस ऑफ स्लैक, एक्सेलरेशन जो है वो उसमें फ्री फॉल वाला एक्सेलरेशन होता है जो कि 10 और -10 होता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन. इफ पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड देन इट विल बी -10. If particle is moving downward, then it will be 10. Okay. So, let's see it later. So, in first part, we have to find out value of h. h definitely will be that point. अब q ने जो distance downward travel किया, वो h है, तो p ने उसी time पे उतना ही distance upward travel किया. The same, वो भी h होगा. Means यहाँ तक, जब तक के p जो है वो slack, string में slack नहीं आया, यहाँ तक का distance. So this distance will definitely be found by finding area under the graph. So let's find out. So area under the graph will be equal to 1 by 2. Base times height means 0.5 multiplied by 2. Right? तो ये आंसर आ जाएगा 1 by 2 or 0.5 meter. So this is height. Next, find the value of m. M means m is the mass basically. And find also the tension in the string while Q is moving. Fine. अब फिर हम forces को resolve करेंगे. तो अब mass find करने के लिए first we find acceleration. In order to find out mass, अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि टाइम हमें स्टार्ट में पता है ये 0.5 है. v जो है वो स्पीड वो डेफिनेटली वो 2 मीटर पर सेकेंड है फाइनल वेलोसिटी. सो 2 इज़ इक्वल टू 0 प्लस ए टू 0.5. सो एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं. We know that one mass is m, other mass is 1 minus m. We don't know whether particle P has mass m and Q has 1 minus m. We don't know for sure yet. But it doesn't make a difference क्योंकि दोनों particles ही vertical position में हैं. So, for one particle, net force will be ma is equal to T minus mg. And for another particle, नेट फोर्स विल बी, क्योंकि एक पार्टिकल का मास हमने m कंसीडर किया है तो दूसरे का मास 1 माइनस m कंसीडर करेंगे. 1 माइनस m इंटू ए इज इक्वल टू 1 माइनस m g माइनस टी. हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि ये पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसलिए इसमें जो वेट है mg वो डोमिनेंट पार्ट है. राइट. सो वी हैव दीज टू इक्वेशंस नाउ. एंड वैल्यू ऑफ a इज ऑल्सो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. g हमें ऑलरेडी पता है 10 है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें तो हमारे पास बन जाएगी 4m इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ a मैंने 4 पुट कर दिया, t माइनस 10m, राइट। तो यहाँ से t आ जाएगा 14m, राइट। आप ये t और a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें and eventually we will get the value of m which will be 0.3 kg. अब m अगर 0.3 kg है, so 1 minus m means other particle वो हो जाएगा 0.7 kg, means 1 minus 0.3, right? अब हमने फाइंड आउट करनी है टेंशन, तो ये आप m की वैल्यू इधर पुट कर दें तो टेंशन भी आ जाएगी, t इज इक्वल टू 14 टाइम्स 0.3, तो ये आ जाएगी 4.2 न्यूटन. दिस इज टेंशन इन द स्ट्रिंग. नाउ थर्ड पार्ट, द स्ट्रिंग is slack while Q is at rest on the ground. Find the total time from the instant that P is released until the string becomes taut again. So basically हमने यहाँ का ये टाइम फाइंड आउट करना है. So string is slack. Slack means जब पार्टिकल Q जो है वो at once नीचे आके लगेगा इधर, तो ये जो रोप है थोड़ा सा इसमें यूँ स्लैक आ जाएगा और पार्टिकल P जो है वो एक इंस्टेंट के लिए फ्री हो जाएगा. ठीक है, फ्री हो जाएगा तो उसमें एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल होगा. सो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, अब हमने बेसिकली टाइम फाइंड आउट करना है. अब पार्टिकल P पहले 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, राइट. सो वी कैन यूज दिस इक्वेशन, let me change its color. We can use this equation v is equal to u plus at. So v जो है फाइनल वेलोसिटी वो अब -2 है. माइनस इज बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन. इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल p की 2 थी क्योंकि स्लैक होने से पहले ये 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा था, राइट. प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो फ्री फॉल है विच विल बी -10 हेयर टाइम्स t. इसको हम सॉल्व करेंगे तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 0.4 सेकेंड. ये टाइम आया, बेसिकली ये टाइम यहाँ वाला है 0.4 सेकेंड, तो टोटल टाइम विल बी 0.5 प्लस 0.4, right, means 0.9 second. That will be the total time. Okay, so the question concludes here.